زمین و آسمان کے ساتھ ساتھ بنائے، ان میں سے 4 مہینے افضل قرار دیے، اور 4 مہینوں میں وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ 3 مہینے بالترتیب ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا آتا ہے جو بالکل الگ ہے، یعنی کہ کچھ مہینوں کے بعد ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے پیدا کرتی تھی جب آسمان اور زمین کو دنیا کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم یا محرم کا جیسا ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک وہ طبقہ ہے جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت اگر ہے تو وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے، اور بلکہ اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی، بھئی یہ سارے پنکھے بند کر دیں، 1-2 پنکھے چلن دیں، پیچھے والے پنکھے جو ہیں وہ بھی آپ بند کر دیں، پیچھے کے بھی چلا رکھیں، ایک پنکھا چلاتے ہیں۔ ایک پنکھا یہ چلاتا رہتا، ایک پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت جب سے ہی پیدا فرما دی تھی، جب سے یہ مہینے بنائے تھے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بہت کچھ آیا ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بنائی ہے اور بتائی ہے، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں اگر کوئی مہینہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے تو کون سا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اس محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کے بعد میں اگر روزہ بھی کوئی مہینے کا افضل ہے تو وہ محرم کے مہینے کا افضل ہے۔ اور محرم کے مہینے کا افضل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہ خصوصی طور پر افضل، خاص طور پر یہ جو روزہ ہے عاشورہ کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو یہ روزہ منسوخ ہو گیا۔ بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں جو یہودی ہیں کچھ تو وہ روزہ رکھتے ہیں، اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ روزے کو کیوں رکھتے ہو، بتایا گیا کہ اس روزے کو ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بنی اسرائیل والی جو قوم تھی اس سے آزادی ملی تھی، اس وجہ سے ہم اس روزے کو رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے، صحابہ سے کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنی نبیوں کی کتابوں کو پامال کر دیا اور عمل کرنا بند کر دیا ہے، ان سے زیادہ مستحق ہم حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 محرم کا یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کافی دن روزہ رکھتے ہوئے ہو گئے، اس کے بعد میں پیارے نبی علیہ السلام یہ تک پسند نہیں فرماتے کسی نہ کسی یہودی کی اور کافر کی مشابہت اختیار ہو۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک طرف مسلمان ہو، دوسری طرف وہ یہودی قوم ہو جو نبیوں پر ظلم کرنے والی ہو، تشدد کرنے والی ہو، اپنے نبی کی تعلیم کو پامال کرنے والی ہو، ہم اس کی مشابہت اختیار کریں۔
کہ دنیا کے اندر کسی انسان کی ہم مشابہت اختیار کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 2 روزے رکھیں گے, یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے گا, یا 10 اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے. وہ اس وجہ سے رکھیں گے کہ لوگوں کے سامنے مشابہت ہم جب تک اختیار کر رہے تھے, ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے, ان کی مشابہت میں ہم شامل ہونا نہیں چاہتے, بلکہ ہمارا حق یہ زیادہ ہے کہ ہم نبی کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عبادت پر, ان کی شریعت پر عمل کرنے کے زیادہ مستحق. ہمیں 11 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ کا کرنا, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کے سامنے تو یہ بات آئی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے اگر انشاءاللہ میں زندہ رہا تو آئندہ 2 روزے رکھیں گے, ان کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر صحابہ نے عمل کر دکھایا, تابعین نے عمل کر دکھایا, بزرگان دین نے عمل کر دکھایا. بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے نہیں ہے. یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس مہینے کی 10 تاریخ میں پیش آیا, بڑا المناک واقعہ ہے, بڑی بھیانک شہادت ہے میرے بھائیوں دوستوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ماتم کریں گے, آپ اب اپنا سینہ کوبی کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر پیارے نبی علیہ السلام سے میرے بھائیوں آپ موجود ہیں. سب سے پہلا جو شہید ہے, آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا اسلام کا سب سے پہلا شہید کون ہے کسی کو یاد ہے؟ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں, حضرت یاسر رضی اللہ عنہ. حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں عمار بن یاسر اور ان کی اہلیہ ہے سمیہ رضی اللہ عنہ. یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں اور یہ سب سے پہلے شہید ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو کتنی پریشانیاں دی گئی, کتنی مشقتیں ان پر آئی, کتنی تکلیفیں دی گئی, لیکن ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. ایک وحدہ لا شریک لہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ظالم کفاروں کے ہاتھ ہتھے یہ لگ چکے ہیں, یہاں تک کہ اتنا ظلم کیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا وہ دردناک واقعہ کس کو یاد نہیں ہے, کس کو معلوم نہیں ہے کیسی شہادت کی اور کیسا منظر تھا. میرے بھائیوں دوستوں, ہم اپنی زبان سے اس کو بیان کرنے میں بھی ایسا لگتا ہے اس سے بڑا بھیانک منظر کوئی نہ ہوگا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا ہے, آپ سوچئے گا, غور کیجئے گا, ایک اونٹ سے ایک ٹانگ ان کی باندھ دی جاتی ہے, دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ دی جاتی ہے, ظالموں کی حدیں چڑھ جاتی ہیں, کفار مکہ کی حدیں چڑھ جاتی ہیں, اور کہا تم ایمان کے خلاف کفر کا کلمہ کہو. لیکن میرے بھائیوں, جان دینا منظور تھا لیکن اپنے آپ کو سر جھکانا منظور نہ سمجھا, کافروں کے سامنے اپنے آپ کو نیچا نہ سمجھا بلکہ جان دے دی. کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا ہے, دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا ہے, اور سامنے کے حصے پر برچھی ماری گئی ہے اور اونٹوں کو چلا دیا گیا ہے. یہ دردناک واقعہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شہید ہیں. ان پر اگر ہمیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماتم کرنا جائز ہوتا, سینہ کوبی کرنا جائز ہوتا, اور سینہ کوبی کرنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے, سوگ منانے کو اللہ کے نبی بتاتے, تو سب سے پہلے ان شہیدوں پر بتاتے. آپ غور کیجئے گا, اس کے بعد میں ایک لمبی قطار ہے, 12 مہینے ہوتے ہیں اسلام کے, اور ان 12 مہینوں میں کوئی تاریخ شاید بچے گی جس میں شہادت نہ ہوئی ہو, ورنہ ہر تاریخ کے اندر کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہے, کسی نہ کسی بزرگ کی, کسی
किसी ना किसी वली की शहादत हर तारीख के अंदर आपको मिलेगी। मालूम क्या होता है कि सय्यदुश शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे भाइयों हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपके सगे चचा हैं। किस शहादत किस दर्दनाक अंदाज से की गई है आप सोचिएगा, वो कीजिएगा। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है, आपके हाथों को काटा गया, आंखों को निकाला गया, कानों को काट दिया गया, नाक को काट दिया गया, बिल्कुल एक एक आधा को अलग कर दिया गया। किताबों के अंदर लिखा है कि तकरीबन 12 टुकड़े किए गए हैं। अब जब देखने की बारी आती है, तलाश किया जा रहा है, हज़रत हम्ज़ा को सहाबा ढूंढ रहे हैं लेकिन लाश नहीं मिल रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को पहचाना है और पहचान के बाद में मेरे भाइयों किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोग के कायल नहीं थे, मातम के कायल नहीं थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हम्ज़ा की लाश को देखा है, इन टुकड़ों को देखा है, बेसाख्ता बेइख्तियार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चीख निकली। अगर शौक मनाना और मातम करना जायज होता तो हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर तमाम सहाबा करते। हज़रत हुसैन मौजूद हैं मेरे भाइयों, हज़रत उस्मान भी हैं, हज़रत अली भी हैं, हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अबू बकर भी हैं, तमाम सहाबा मौजूद हैं। तमाम सहाबा मौजूद होने के बावजूद आपने मना फरमाया कि आपको मातम नहीं करना, मातम नहीं करना। शहीद जिंदा होता है, शहीद मुर्दा नहीं होता है। मुर्दा वो होता है जो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। कुरान करीम इस बात का ऐलान करता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। यहाँ तक लिख दिया कि अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ भी खिलाते हैं, उनको सब कुछ देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि शहीद जिंदा हो गया? आज एक मुतबका जो अपने आप को अली का दावेदार कहता है, मोहब्बत के नाम पर झूठ फैलाता है, मोहब्बत के नाम पर जुल्म करता है, मोहब्बत के नाम पर माँ बहनों की इज्जतों को लूटता है, मोहब्बत के नाम पर गाना बजाता है। मेरे भाइयों, ये शरीयत के अंदर और किताबों के अंदर, तारीख के अंदर नहीं लिखा। और आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा, आपको तो एक नाम याद है, दो नाम याद है। जब हम किताब पढ़ते हैं उठाकर तो हमें मालूम होता है हकीकत क्या थी और इसके ऊपर टाइटल क्या लगाया गया और लोगों को बहकाने के लिए और लोगों के सामने झूठ को फैलाने के लिए इतना आम किया गया आज पूरी दुनिया के अंदर झूठ को कि ये मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी कहता है, जो अपने आप को आशिक कहता है, ये भी उनके साथ में उस अमल को अंजाम देने लगा जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत हम्ज़ा की शहादत शव्वाल का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। मेरे भाइयों, कामयाबी अगर किसी चीज में है तो नबी के मानने में है, वो अल्लाह की बात को मानने में है, इसके अलावा किसी चीज में कामयाबी नहीं। मैं इशारा करते चलूं कि एक तरफ खुशी का मौका है, शव्वाल का महीना है, शव्वाल में हज़रत हम्ज़ा की शहादत होती है, आपके बाद में फौरन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत होती है। ये 18 ज़िलहिज्जा है, ये भी ईद का मौका है, ईद से इंसान फारिग होते हैं, खुशी का मौका है। लेकिन सहाबा ने मातम न किया, सहाबा ने सीना कोबी नहीं की, अपने सीने को चाक न किया, अपने गाले पर मातम न किया, किसी सहाबी ने नहीं किया। लेकिन ये क्यों करते हैं? खानदान अहले बैत से मुराद किया है। अभी हमने गौर किया कि हज़रत हसन, कि हज़रत हुसैन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बस यही मुराद है, 4 और 5 आदमी मुराद हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अहले बैत का माना क्या है? अहले बैत, लफ्ज़ अहले बैत किस पर बोला जाता है आपको मालूम नहीं है? मैं आपको बताता चलूं, अहले बैत ये लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है और बैत के माने काय को बोले जाते हैं? अहल से मुराद सबसे पहले उस घर की औरतें आती हैं जो अज़वाज मुतहरात हैं, ये अहले बैत के साथ। उसके बाद में है बच्चे, उसके बाद में है बच्चियां, उसके बाद में पूरा खानदान आता है। सबसे पहले अगर अहले खाना आप लोग पूछते हैं कि आपके अहले खाना सही है, क्या आप बच्चों को पूछते हैं?
छोटे छोटे मासूम बच्चों को पूछते हैं, आपका मुराद ये होती है कि आपकी बीवी सही है, आपके बड़े सही हैं, फिर उसके बाद में नंबर आता है आपके बच्चे सही हैं। आज हमने इस तारीख को बुलाया, अहले बैत पर मैं बात करता चला कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया 18 ज़िलहिज्जा में। उसके बाद में आगे चलिएगा 27 ज़िलहिज्जा आती है, 26 ज़िलहिज्जा आती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जालिम फिरोज नामी अबू लूलू ने, मेरे भाइयों, खंजर में डूबे हुए, जहर में डूबे हुए खंजर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज के अंदर इस अबू लूलू फिरोज नामी, जो ईरान से मंसूबा चला था, और वहां से चलने के बाद में एक इसके साथ में जहूना यहूदी था, 2 ये साथी थे, और सहाबा की सब के अंदर बढ़ जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज की हालत में इसने अपने जहर से डूबे हुए खंजर को हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ में घोंप दिया है, और वो आर पार निकल चुका है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसल्ले से गिर गए हैं। अब्दुल रहमान को इशारा दिया है कि आप नमाज को मुकम्मल कराइए। नमाज मुकम्मल हुई। किताबों के अंदर लिखा है कि ये दोनों हजरात सहाबा की सफ़े इतनी मजबूत थी, बहुत तो गए थे लेकिन निकल ना पाए थे। और इसने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जिसने अबू लूलू ने शहीद किया था, इसने 13 सहाबी को, मेरे भाइयों, जख्मी किया है, और 7 सहाबी शहीद हो चुके हैं। वही अपने आप अपना खंजर अपने आप मारकर सफों के दरमियान में शहीद हुआ है। 26 ज़िलहिज्जा है। हजरत उमर को ले जाया गया, उठाकर ले जाने के बाद में मेरे भाइयों 27 ज़िलहिज्जा आती है। 27 ज़िलहिज्जा में इनके एक दवाई डाली जाती है, शायद ये सही हो जा। बहरहाल वो दवाई डाली गई। दवाई डालने के बाद में पता ये चलता था, सहाबा कहने लगे कि हजरत उमर अब सही हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, अल्लाह को अपने पास बुलाना मंजूर था। मेरे भाइयों, वो जख्म से दवाई बाहर निकल गई है। 28 ज़िलहिज्जा आता है। 28 ज़िलहिज्जा में तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई। बिलाखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 1 मुहर्रम हराम में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आगे चलिएगा, मालूम होता है कि हमने तारीख को बिल्कुल पीछे डाल दिया है। जब कोई इंसान अपनी तारीख को पढ़ता है, उसकी हकीकत का पता चलता है। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे अगर इंसान अमल करता रहता है तो वो दुनिया के अंदर भी जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है। लेकिन जब तारीख नहीं पढ़ी, किसी से सुना नहीं, किसी से पूछा नहीं, मालूम नहीं किया, हर किताब के अंदर, हर जबान के अंदर आज इन लोगों की तारीख मौजूद है। आप कोई सी भी जबान उठा लीजिए, हर जबान के अंदर तारीख मिलेगी। बहरहाल ज्यादा लंबी तफसीर क्या करते हुए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो अलमनाक शहादत का वाक़या पेश आया है, मैं आपको बताता चलूं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, बल्कि 72 वो आदमी है जो हजरत हुसैन के साथ में शहीद हुए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा है कि इन 72 में सिर्फ हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उम्मे कुलसूम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बचे हुए हैं। 3 या 4 इंसान बचे हैं, बाकी के बाकी सबको जालिमों ने शहीद कर दिया गया। यजीदी की उस फौज ने जो अपने आप को पावरफुल कहता था, हजरत मुआविया के बाद में ये तख्ता नशी हुआ है, ये बैठ गया है हुकूमत संभालने के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत हुसैन मदीने के अंदर मौजूद है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास में मेरे भाइयों खबर आती है गवर्नर की तरफ से कि आप बैत कर लीजिएगा, हजरत यजीद के हाथ पर बैत कर लीजिएगा। हजरत हुसैन ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो हुकूमत का अहल नहीं है, वो उस पर हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से निकलते हैं, मदीने से मक्के की तरफ को चलते हैं। सहाबी मौजूद हैं, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे भाइयों सब कुछ मालूम था, लेकिन हजरत हुसैन यहाँ से निकलते हैं। और निकलने का मकसद ये नहीं था, निकलने का मकसद ये था कि कैसे न कैसे ये लोग इसके हाथ पर बैत करने से बाज आ जाएं, ये बैत करना बंद कर दें। वो यहाँ से निकले हैं, मक्का पहुंचे हैं, और मक्के में पहुंचने के बाद में जैसे ही मक्का पहुंचे हैं, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इराक से सैकड़ों खतूत आने शुरू हो गए।
वो कूफी सैकड़ों खतूत इनके पास भेज चुके थे, और जब उन्होंने उसका जायजा लिया है, सहाबा मौजूद हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, मशवरा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, हजरत हुसैन फरमा रहे हैं, कूफियों के यहाँ से खत आते हैं, एक आता है, दो आते हैं, 10 आते हैं, 50 आते हैं, 100 आते हैं, यहाँ तक के किताबों के अंदर ये लिखा है कि 1200 खतूत भेजे हैं, एक लंबी कतार है खतूत की, तकरीबन 150 आदमी काफिले के भेजे हैं कि जाकर हजरत हुसैन को बुलाइए, फल थक चुके हैं, हम आपके हाथों पर बैत करेंगे, हम आपको अमीर बनाएंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है, झूठ नहीं तो और क्या है। यहाँ से मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, साहबा ने इनको समझाया, हजरत हुसैन मशवरा ले रहे हैं कि वहां से खतूत आ रहे हैं, मैं मक्के से कूफा की तरफ जाता हूँ, वहां मुझे जाना जरूरी है, इनकार किस बात का करूं, वो इस चीज पर राजी हो गए। लेकिन साहबा फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं कि कूफी वफादार नहीं है, कूफी गद्दार हैं, वो धोखेबाज हैं, वो झूठे हैं। जिस तरीके से तुम्हारे अब्बा जान हजरत अली को उन्होंने शहीद किया, हजरत हसन को शहीद किया, ऐसे ही तुमको भी ये नहीं छोड़ेंगे। कूफी किसी के वफादार नहीं है, लेकिन हजरत हुसैन को क्या मालूम था, उनको क्या पता था कि ऐसा भी होगा, उनको मालूम नहीं था। बल्कि मेरे भाइयों, किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया। जब सहाबा ने कहा कि अभी आप वहां ना जाएं, तो हजरत हुसैन ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि हजरत हुसैन के चचाजाद भाई हैं मुस्लिम बिन अकील, इनको भेजा है कि जाकर वहां का जायजा लेकर आइए। मालूम होगा जब ये वहां पहुंचते हैं तो क्या किया है, उबैदुल्ला इब्ने जियाद, ये सबसे बड़ा जालिम है। आखिर में ये जो यजीद था, ये जालिम आपके कातिल होने के बाद में बना है, उससे पहले जालिम नहीं था। ये यजीद जिसका नाम है, जिसकी सब लोग ये कहते हैं फासिक है, हाँ मानते हैं ये फासिक है, ये फाजिल है, लेकिन मेरे भाइयों उबैदुल्ला इब्ने जियाद सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा मक्कार उबैदुल्ला इब्ने जियाद है, जिसने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की, और बैत करने के बाद में वो सर्टिफिकेट हजरत मुस्लिम का जो आया मक्के के अंदर, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा को दिखाया कि ये उधर से खत आया है, और वो उसने इस पर बैत कर ली है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्या तैयार है वो बैत करने के लिए। बहरहाल ये यहाँ से निकले हैं, और निकलने के बाद में मक्के से कूफा की तरफ को जा रहे हैं। मकाम जुबाला पे पहुंचे हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, साथ में सब बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। मकाम जुबाला पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद में खबर होती है कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, और बड़ी दर्दनाक तरीके से शहीद किया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हजरत हुसैन ने इस वक्त भी फरमाया था, जब हजरत हुसैन के पास में उमर बिन साद लिखा है किताबों के अंदर कि उनसे बात हुई, तो 3 अपनी शर्तें हजरत हुसैन ने रखी। पहली शर्त यह रखी कि मुझे वापसी जान दो, पहली शर्त क्या रखी, मुझे वापसी जान दो। दूसरी शर्त रखी कि मेरी हुक्मरान से बात कराओ, डायरेक्ट यजीद से मेरी बात कराओ, मैं उससे मुकाबला करूंगा, उससे बात करूंगा। और तीसरी शर्त रखी कि मैं इन काफिरों से खुद मुकाबला करूंगा। मेरे भाइयों, इन तीनों शर्तों को नहीं माना गया। ये कौन था बीच में टांग अड़ाने वाला? उबैदुल्ला इब्ने जियाद था। इसने हुक्मरान के सामने नहीं जान दिया। इसे मालूम ये था कि हजरत हसन और हजरत मुआविया के अंदर जो इख्तिलाफ था, इनके अंदर सुलह हो चुकी थी। हजरत हसन जब इनसे मिले थे तो मुआविया और हजरत हसन की सुलह हो चुकी थी। हो सकता है हुसैन और यजीद की भी सुलह हो जाए, इसने आगे नहीं जान दिया। नतीजा ये हुआ कि इसने एक शिवर था जो नंबर 1 का बदमाश था, इन्होंने हजरत साद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो सहाबी थे, इनका खत यजीद के पास में गया, यानी उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास, गवर्नर के पास में पहुंचा। मालूम हुआ जब ये तीनों शर्तें उसने देखी, उसने फौरन कहा, इनके साथ में शिम्र था, और शिम्र ने ये फरमाया कि उमर बिन साद जो है इनका लहजा नरमी था। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने इस खत को देखा, और देखने के बाद में फरमाने लगे कि तुम इतनी नरमी से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बात करते हो। उसमें टपक रही थी ये बात के नर्म लहजा है। लेकिन मेरे भाइयों, इस शिम्र को
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने रवाना किया है। तकरीबन 2000 का काफिला है और 2000 का काफिला ये पहुंचता है। लेकिन मेरे भाइयों, तारीख के अंदर यहाँ तक लिखा है कि इनको शहीद कर दिया गया। ऐसा दर्दनाक वाकया कभी ना आया। इन्होंने बच्चों के ऊपर भी मेरे भाइयों तरस न खाया, बड़ों के ऊपर भी तरस न खाया। यजीद तो बाद में जालिम हुआ है। हम मानते हैं जिसके पास में हुकूमत है वही हुकूमत को चलाने वाला होता है, लेकिन सबसे बड़ा जालिम मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, जिन्होंने इनको कत्ल किया। मैं बता रहा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी है और इनके बेटे कितने हैं मेरे भाइयों? आज हमें 2 याद है, 1 याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता चलूं, टाइम हो चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मेरे भाइयों 6 बच्चे हैं और इन 6 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे का नाम हसन है, दूसरे बेटे का नाम हुसैन है, तीसरे बेटे का नाम मोहसिन है। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है, दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया है, तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम है। 6 बच्चे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत फातिमा के हैं। और इसके बाद में अगर देखा जाए हजरत अली के 15 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं। उन 18 बेटों और बेटियों में मेरे भाइयों दोस्तों अबू बकर भी शहीद हुए हैं, उस्मान भी शहीद हुए हैं, अली भी शहीद हुए हैं, अली इब्ने हनफिया भी शहीद हुए हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सैकड़ों आदमी हैं जिनकी शहादत हुई है, लेकिन हम इनको भुलाए हुए हैं। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हम इस महीने के अंदर जो आजकल पूरे माशरे के अंदर दिखाया जा रहा है ये सिर्फ झूठ है, ये गद्दारी है, ये अहले बैत के साथ में जुल्म है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। और मेरे भाइयों ये तो इन लोगों को सजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी कि क़यामत तक तुम अपने ऊपर मातम करते रहोगे, अपने जिस्म को नोचते रहोगे, वही सजा ये भुगत रहे हैं। एक वक्त आएगा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसका मैंने अभी किस्सा सुनाया, जिस तरीके से इन्होंने हज़रत हुसैन को शहीद किया था, वैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इतनी बुरी मौत मरा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों तारीख के अंदर ये लिखा है कि उसकी लाश को वहीं पर रखा गया हजरत हुसैन के दरबार में, जहां उस गवर्नर के दरबार में यानी हजरत यजीद के दरबार में रखा गया। और उस दरबार के अंदर उसी जगह पर इसी यजीद की लाश को रखा गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की लाश को रखा गया और तकरीबन 52 कुत्तों को उसके चेहरे के ऊपर छोड़ दिया गया है और उसको नोच नोच के खा गए हैं। इतनी बुरी मौत ये मरा है। और लिखा है किताबों के अंदर कोई भी कातिल हुसैन के अंदर कोई हाफिज नहीं, कोई कुरान का कारी नहीं। हज़रत ज़ैनब ने ये बददुआ दी थी कि तुम जलालत की मौत मरोगे, तुम जलील हो जाओगे पूरी दुनिया के अंदर। आज वो ये सजा भुगत रहे हैं। आज ये मजमा ये अहद करके उठे कि हमें मेरे भाइयों रोजा रखना है, हमें मातम नहीं करना, हमें अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। अगर मातम करना जायज होता तो नबी हजरत हमजा की शहादत पर मातम करते, हजरत उमर की शहादत पर मातम कर लेते, हजरत उस्मान की शहादत पर मातम कर लेते। मेरे भाइयों हजरत सुमैया की शहादत पे मातम करते, हजरत यासीन की शहादत पे मातम करते। लेकिन मातम करना जब जायज नहीं है तो मालूम ये होता है ये चीजें शरीयत से दूर हैं, शरीयत के अंदर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, शरीयत के अंदर इसका कोई वास्ता नहीं है कि शरीयत के अंदर ये चीजें मिलती हैं। हमें लोगों को भी समझाना है, हमें बताना है, झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है कि अगर कोई अपना मातम निकालता है वो निकालता रहे, हमें अपने आप शामिल नहीं होना। हम नबी के मानने वाले हैं, हम वाकई अहले बैत को चाहने वाले हैं। अहले बैत के आशिक अगर कोई है तो मुसलमान यानी सुन्नी हज़रात हैं। अहले इस्लाम के मानने वाले अगर कोई है तो मुसलमान है, कोई काफिर नहीं है। ये लोग तो जुल्म करने वाले हैं, ये लोग तो धोखा देने वाले हैं, ये लोग तो तशद्दुद करने वाले हैं। इन लोगों को कहाँ अहले बैत से मोहब्बत। इन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम कह दिया, वाजिब कह दिया, हजरत उमर को वाजिब कह दिया, हजरत अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम नहीं करते और ये कहते हैं कि हजरत अली पहले खिलाफत के मालिक हैं। मेरे भाइयों दोस्तों खुद हजरत अली ने हदीस में फरमाया है कि नंबर 1 पे हजरत अबू बकर खिलाफत अव्वल पर हैं, दूसरे नंबर पर फरमाया हजरत उमर खिलाफत अव्वल पे हैं और दूसरे पर हैं और तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान है। हुनैफा हनीफ इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये हजरत अली के बेटे हैं
یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تیسرے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی خاموش ہو گئے ہیں. حضرت علی جب خاموش ہو گئے دوبارہ پھر پوچھا ہے. حضرت علی کے بیٹے نے، بڑے بیٹے ہیں، فرمانے لگے کہ حضرت عثمان غنی یعنی ذوالنورین نام بھی نہیں لیا تھا، یہ فرمایا ذوالنورین جو ڈبل داماد ہے تیسرے نمبر پر یہ ہے. اور پوچھا کہ اپنے بارے میں فرمانے لگے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، میں خلیفہ نہیں ہوں. یہ عاجزی کا تواضع کا انکساری کا حال حضرت علی کا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پیچھے کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے. اور یہاں تک کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غار ہیرا کا واقعہ کس نے نہیں پڑھا، غار ثور کا واقعہ کس نے نہیں پڑھا، سب کو معلوم ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار میں وہ نہیں تھے. ابو بکر بتاؤ کس چیز کا آپ مانیں گے، کس چیز پر کریں گے؟ جس صحابہ کو نہ مانتا ہو، جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو، جو ازواج مطہرات کو نہ مانتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا ہے جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، تیسرے نمبر کی ام کلثوم بیٹی ہیں حضرت علی کی. ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا. کیا کہتے ہیں کہ زبردستی کر لیا. کیسے زبردستی کر لیں گے؟ اگر زبردستی کرتے، تم کہتے ہو یا علی مدد، تم کہتے ہو مشکل کچا علی کو، تو تمہارے مشکل کچا علی نے، تمہارے یا علی مدد نے حضرت عمر سے نکاح کرتے وقت اپنی بیٹی سے کیوں نہیں روکا تھا؟ اگر واقعی تم اتنے بڑے اہل بیت کے ماننے والے ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غدر ہے. اس غدر کو ختم کیا جائے. اور ہم 1400 سال سے اس غدر کو سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو نہیں دینے والی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ تاریخ نہیں پڑھی ہے، دوسروں سے سنی ہے یا دوسرے ایسے آدمیوں سے سنی ہے جو اس کے ناواقف ہیں، جو نہیں جانتے ہیں. بہرحال جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں. اور دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں دوستوں، اگر کوئی آدمی عبادت کے اندر چاہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے تو کوشش یہ کرے پورے مہینے کے لگاتار روزے رکھ لے، یا کم سے کم 1-2 روزے رکھ لے، 5 رکھ لے، جس کی جو حیثیت ہو عبادت کرے اور ان خرافاتوں سے دور رہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.